इस्राएल का रक्षक कभी सोने वाला नहीं है। भजन संहिता 121 में हम क्या देखते हैं? In Psalm 121 we see The creator of the world, पृथ्वी की सृष्टि करें, he is our keeper. वो हमारा रखवाला है। The creator of the world is our आमेन keeper. आमेन आमेन। ये सृष्टिकर्ता हमारा रखवाला है। It's not written that, hallelujah, some appointed angels are protecting us, ऐसा नहीं लिखा है कि कोई स्वर्गदूत हमारी रक्षा कर रहे हैं। but it is written that he himself is our आमेन keeper. आमेन। सिर्फ और सिर्फ वो केवल हमारा रक्षा करने वाला है। The creator of the universe, ये ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, the Almighty God अपना रखवाली, is our अपना keeper. रक्षक बन के Amen amen। He is our keeper। प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए। आज Let's all thank God। पिछले हफ्ते का हर दिन Last week, every single day हम of our lives, सबके जीवन में प्रभु ने किया हुआ कामों के लिए धन्यवाद दे दीजिए। let's thank Him for everything that He has done in our lives। आंखों की पुतलियों जैसे हमें संभाला, He looked after us as the apple of His eye। हमें से किसी को भी कोई कमी, कोई कष्ट नष्ट होने के लिए नहीं Amen दिया। amen। He did not allow any suffering to come upon us। शैतान का युक्तियों से हमें बचा के Amen। He रख kept दिया। us safe from every devices of the evil one। शैतान का सारे षड्यंत्रों से हमें बचा के रख He दिया। kept us safe from all the plans and schemes of the evil one। शैतान का जो हथियारों कामयाबी होने के लिए नहीं दिया, He did not allow the weapons of the devil to be fulfilled against क्योंकि us। इस्राएल का रक्षक, हालेलुया, Amen amen amen। The protector of जाग Israel। के हमें रखवाली करते हैं। Amen। He's awake and He's looking after us। 24 hours, even though we were sleeping, भले ही हम सो रहे हो, he was protecting us. आमेन, वो हमारा रखवाली कर रहा था। हालेलुया हालेलुया आमेन। आपको जानते एक बात, Do you know one thing? अब शायद जो उल्कापात का बारे में सुना होगा, Asteroids। Asteroids। Yes। आपको जानते हैं Have you all seen asteroids falling from sky? हर दिन कितना उल्कापात धरती के ऊपर होते हैं। Amen। There are so many asteroid showers happening daily। मेरा लाइफ टाइम इतना साल मैंने जिया, The lifetime that I have lived, मैंने अभी तक एक टीवी न्यूज़ देखा नहीं, I've never seen a TV news। एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ देखा नहीं। I've never seen such an exclusive आज news एक उल्कापात हुआ है, that today an asteroid is going to hit Earth। देखा गया। Have you all seen it? But every hour Amen amen। हर एक क्षण, from the space, हर एक ब्रह्मांड में, ऐसे धरती की ओर पत्थरों फेंक रहे। there are asteroids that are being kept thrown Can at you the imagine sky। that? धरती की ओर पत्थरों फेंक रहे हैं। The छोटा पत्थर asteroids नहीं are है, hitting Earth छोटा पत्थर नहीं है, and it's not some small big stones। rocks, They are huge big rocks। asteroids, बड़े बड़े उल्कापत है। बाह्य आकाश से आ रहे। They are coming from the outer space। But it is not a big news. पर ये कुछ बड़ा बात नहीं है। क्यों बिग न्यूज नहीं है? Why isn't it such? हालेलुया, हर दिन होते। It happens every day। It's quite natural now. और वो तो बहुत ही साधारण बात है। उसमें से कोई भी उल्का धरती में गिरने के लिए नहीं देते। Amen amen। Because God does not allow it to fall on earth। अगर उसमें से एक उल्का आधा जल के धरती में गिरा तो And if that asteroid falls on earth, वो बहुत बड़ा न्यूज टाइटल बनने वाला था। it's going to become a big news title। कभी गिरा होगा, It might have fallen some other लेकिन time। मेरा जीवन का कोई भी समय में मैंने इसे न्यूज But देखा in नहीं। my lifetime I haven't witnessed it। Same way, In the same way। every day, Amen। हर एक दिन। you cannot count कितने बार शैतान आपके ओर फेंका है। Amen Hallelujah. amen amen। आप गिन नहीं सकते शैतान ने कितने बार आप पर निशाना आप लगाया। गिन नहीं सकते। You cannot count it। That is not a news. वो एक न्यूज नहीं क्यों है। न्यूज नहीं है? It's not a news। क्योंकि कवच आपके चारों तरफ है। Amen amen। Because you are protected। आपके Hallelujah। पास पहुंचने के लिए नहीं दे रहे। Amen। Because God did not allow it to come near you। हर दिन उल्कापात हो रहे आपके विरुद्ध There are में। a lot of asteroids being thrown But at the you। keeper, Amen। पर hallelujah, आपका रखवाला, the maker of heaven and earth, Amen, वो सृष्टिकर्ता स्वर्ग और He is पृथ्वी your का, keeper। वो तुम्हारा रखवाला है। the maker of heaven and earth is your keeper. Amen amen। ये धरती और आसमान का सृष्टिकर्ता तुम्हारा रखवाला है। He is protecting you. वो तुम्हें सुरक्षित रखा है। That's why here you are today morning to worship Him. इसलिए आज सुबह के समय आप यहाँ पर हो आराधना करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। इस्राएल का रक्षक आमेन आमेन दिन आमेन। रात जाग के
आपका चारों तरफ कवच बना के रखा है। Amen. The keeper of Israel is awake day and night to keep you and I safe. हमल खामा शखबाना रामदल पमतन रगदल कडगर। Amen. Hallelujah. Hallelujah. जुबाला गदल Hallelujah. वंशल खमना रगदल Glory, कडगर glory, glory, Lord. शांतने। Thank you, Lord. Hallelujah. कुछ बातों में ना There are some things उसका इंपॉर्टेंस, उसका महिमा क्या है हमें जानता नहीं है। we don't know the importance of those things. हर दिन धरती में उल्का गिर रहे। Every day there are asteroids hitting I do Earth. not know मैं नहीं जानता any scientific agency, space agencies counting that asteroids. ऐसे बहुत सारे स्पेस एजेंसीज हैं जो इनको गिनते बैठे हैं। Are they counting? I do not know. वो गिन भी रहे हैं कि मैं नहीं जानता। Why they are not counting it? वो क्यों नहीं गिन रहे? Because that asteroids are not having any impact. क्योंकि Hallelujah. उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है Not पृथ्वी necessary पर, to count them. इसीलिए उसको गिनना मतलब नहीं है। हेलो Amen. अपने विरुद्ध में कितना शैतान षड्यंत्र में रहे मालूम है? Hallelujah, hallelujah. The devil's schemes are so many against us. कितने बार आज आपका विरुद्ध में वेपन से इस्तेमाल किया मालूम And है? today he might have used so many weapons against you. हालेलुया। आपको भी पता नहीं मिला कैसे उसको प्रभु ने Amen, आपका amen, जीवन से hallelujah. हटाया। हालेलुया। Amen, amen. Even you are not aware how God did not allow it to come to attack your life. हालेलुया। Hallelujah, amen, He is amen, our amen. रक्षक। हालेलुया। वो हमारा रखवाला He है, is our रक्षक। वो हालेलुया। हमारा रखवाला है। What we were singing, हालेलुया। हम गा रहे थे, हम क्या गा रहे थे? हालेलुया। जब गाना गाते हैं ना, उस गाना का मतलब जान के गाना है, when we sing we should know the meaning of that तो song हम and दिल से sing गा पाएगा। so that we can Then sing from we our will sing heart. it from our heart. तो हम दिल हालेलुया। से गाएंगे। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। यहोवा मेरा रक्षक मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने ही थामा है। Psalms 51। हे मेरे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। देख, मैं अधर्मों के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हीम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। 17, 18, 19 हम एक साथ पढ़ेंगे। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम के शहरपना को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। इतना समय तक हम आराधना कर रहे थे। जिनके पास अन्य भाषा का वरदान है, जो आराधना करते हैं, वो निरंतर आराधना करे, स्तुति करे। जलाल, कबोड, महिमा। साम्स 51 हमने पढ़ा। परमेश्वर के महिमा में अगर हमें प्रवेश करना है, उसके पीछे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। उसके पहले कुछ बातें हमें ध्यान देना जरूरी है। साम्स 51 पहले तय नहीं था, परंतु प्रभु ने मुझे जिस प्रकार अगुवाई की,
मैं उसी हिसाब से मैं Psalms 51 को मैंने पढ़ा, मैंने गाया। हम एक पिकनिक के मूड पे, एक कैंप के मूड पे हम हैं। मैं विश्वास करता हूं हमारा कैंप 3 दिन का कैंप था। अब्राहम के हाथ में भी 3 दिन का समय था। कहां? उनके घर से इसहाक को चढ़ाने के लिए मोरिया के पहाड़ पर। आज हमारा दूसरा दिन है। उनको 3 दिन संपूर्ण होना पड़ा, परंतु प्रभु का आत्मा बोल रहे आज दूसरा जो दिन है, प्रभु कई लोगों का काम तमाम आज ही कर देगा। हालेलुया। प्रभु के साथ चलने का, प्रभु के उपस्थिति में बने रहने का, प्रभु के महिमा में प्रवेश करने के बीच में जो दरार है, प्रभु काम आज तमाम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। प्रभु हमारा वो परमेश्वर, जय दिलाने के बाद हम जय के उत्सव नहीं मनाते। यहोशू को दिया हुआ वो वायदा कैसा था कि देख मैंने यरीको को तेरे हाथ में दे दिया। हालेलुया। न्याय यरूशलेम तेरे पास है, तेरे सानिध्य में है, तेरे सामने है। जय देने वाला उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह भी तेरे साथ है। हालेलुया। मुझे सिर्फ काम इतना है, मैं प्रभु को जानूंगा, और प्रभु को जानने के लिए विश्वास काफी नहीं, मेरा जीवन का समर्पण काफी होगा। हालेलुया। विश्वास में मैं खुद बना रहता हूं। मैं अगर विश्वास करूंगा उसमें मैं हूं, परंतु मेरा समर्पण अगर अब्राहम की तरह परफेक्ट है, हालेलुया, मेरा समर्पण छुटकारा, चंगाई, आशीर्वाद संसार के थोड़ा दिनों के लिए, परंतु नया नियम का वो सामर्थी वचन वो कौन सा है? प्रभु अपने चेले लोगों को और देख के बोल रहे हैं, अगर देख मेरे पीछे अगर तुझे आना है, खुद को इनकार करके अपना क्रूस उठा के आना पड़ेगा। हालेलुया। दिस इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस। हालेलुया। इसमें लिखा है मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। प्रभु मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। ऐसा क्यों कहा गया? यही मन एक समय जीवित परमेश्वर की आराधना करता था, उसके भलाई को देखकर, उसके किए हुए सारे उपकारों को याद करके धन्यवाद देता था, बड़े गवाही भी देता था। तो यही मन के अंदर परमेश्वर के व्यवस्था के विरुद्ध काम और परमेश्वर के व्यवस्था के विरुद्ध वो, हालेलुया, सारे करतूते कैसे आ गया? आप एक बार सोच लीजिए। मेरे ख्याल से इस बात को मैंने पहले भी रखा था। मुझे ये बात काफी चिंता करने के लिए मजबूर करता है। पत्रोस, जिन्होंने प्रभु के साथ चला, प्रभु के उपस्थिति में बना, प्रभु के उन सारे गुप्त रहस्य की बात को जानता था, जिन्होंने प्रभु को नकार कर जब उस क्रूस को लेके प्रभु जा रहा है और पत्रोस दूर से, हालेलुया, सब पैरों के बीच में से वो काटा हुआ शरीर, कुचला हुआ, घाव से भरा हुआ शरीर, उनको देखकर पत्रोस अपने आत्मा में क्या बोल रहे हैं? वो अपने आत्मा को क्या गवाही दे रहे हैं कि हे केफा, तू ही ना बोला था जीवन के आखिरी दिनों तक उनके साथ वफादारी के साथ चलेगा? तू ही ना बोला था मैं मरने के लिए भी तैयार हूं? तू ही ना बोला था जीवन के आखिरी सांस तक मैं तेरे संग रहूंगा? तू ही ना बोला था प्रभु मैं लीडरशिप करूंगा सबसे पहले? पर जब मेरा बारी के समान बारी आया, तू मुझे छोड़ के चला गया। प्रभु के महिमा में प्रवेश करने से पहले कितने लोग प्रभु को छोड़ दिया। हालेलुया। दाऊद कहता है मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, ताकि मैं संसार के कोई भी बात मुझे मिले ना मिले, मैं तेरे साथ बना रहूं। हालेलुया। मैं तेरे संग बना रहूं, क्योंकि प्रभु तूने मुझे जब चुना था, मैंने जब तुझे चुना था, सबसे पहले तूने मुझे चुना और मैंने ऐसा कहा था प्रभु मैं तेरे संग जीवन के आखिरी दिन तक मैं चलूंगा, जैसा तू कहेगा मैं करूंगा, जैसा तू बोलेगा मैं सुनूंगा। जिस दिन मैं तेरे घराने में जन्म लिया था मैं ऐसा ही वायदा किया था, परंतु समय के साथ साथ संसार मुझे ढांप दिया, क्योंकि मैं तेरे ऊपर कहां तो विश्वास तो करता हूं। क्रिश्चियनिटी में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ऐसा है, हम प्रभु के पर विश्वास करते हैं पर समर्पण के बातों को हम गाड़ कर दबा देते हैं। हालेलुया।
क्योंकि समर्पण का बात जहां आएगा वहां क्रूस उठाने के बात आएगा। समर्पण का बात जहां आएगा वहां मैं नहीं तू, मैं घटू प्रभु तू बढ़े। सी प्रभु नहीं, मैं घटू, मेरे सामने जो व्यक्ति है उनको बढ़ना है, तू बढ़े, तुम बढ़ो। तू बढ़ेगा तो तेरा आशीष का परसेंटेज प्रभु मुझे देगा। हालेलुया। महिमा में प्रवेश करने से पहले मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे जीवन में चंगाई मिले ना मिले, मेरे घर में दाल चावल आटा परिपूर्ण रहे ना रहे, मेरे जीवन में मेरे बाजू में बैठने वाले लोग आशीष देखे ना देखे, परंतु हे यहोवे, तू मेरे जीवन मेरे आत्मा का आशीष को तू जानता है। मेरे पास क्या है तू जानता है, तूने मुझे क्या दिया और मैंने क्या चीज को पकड़ कर रखा। मेरे जीवन का असली धन दौलत के हिसाब से, स्वर्गीय धन दौलत के हिसाब से तू जानता है। लोग मुझे तुच्छ माने, ये संसार में रहने के दिनों में स्वर्ग में और इस धरती पर तू छोड़ के मेरा और कौन है प्रभु, मेरा और कौन है प्रभु तू छोड़ के। मैं आया था, तू देख प्रभु, मैं पाप के साथ मेरे मां के पेट में मैंने जन्म लिया, मैं अधर्मों के साथ उत्पन्न हुआ प्रभु, परंतु ये तेरी महादया और करुणा का फल है प्रभु, तूने यहां तक लेके आया। तू जानता है, मेरे पास्टर नहीं जानते, मेरे कॉलीग्स नहीं जानते, मेरे नेबर्स नहीं जानते, मैं एक बहुत धोखाधड़ व्यक्ति हूं प्रभु। देख इधर सबको धोखा देने के लिए मैं कितना अच्छा कपड़ा पहन के बैठा, कितना अच्छा परफ्यूम मैंने लगाया, देख प्रभु, मेरे बाजू में बैठने वाले किसी को मालूम नहीं, परंतु तू जानता है मेरा शुरुआत, मेरा जीवन, मेरा समर्पण और मेरे जीवन का उस गंभीर बातें तू जानता है प्रभु, क्योंकि तू दूर से मुझे परख लेता है, पहचान लेता है। मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर प्रभु। तू चाहता मेरे घर, मेरे 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 हृदय के अंदर एक घर बनाने का, परंतु मैंने उसको अशुद्ध कर दिया प्रभु। इसके लिए इधर स्तुति आराधना हो रहा है, उपासना हो रहा है, प्रभु के दास वचन दे रहे हैं, परंतु मैं प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं तेरे उपस्थिति में। What is the reason behind that? मेरे अंदर शुद्ध मन नहीं है, मेरे अंदर हालेलुया स्थिर मन नहीं है, वो उछलता है, कूदता है। शरीर तो यहां है, वो कब जाके इंस्टाग्राम में, कब जाके फेसबुक में, कब जाके व्हाट्सएप में मैं वो फोटो अपलोड करूंगा। हालेलुया। This is not a Christian life. Hallelujah. फोटो उठाने के लिए, इधर का सारा माहौल को कैद करने के लिए है, परमेश्वर अपॉइंट करके रखा। प्रभु अपना कलीसिया अपने हाथों से बनाया। अधोलोक का फाटा जब उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा तो दुष्ट का काम कैसे होगा? कुछ नहीं हो सकता है। मैं एक शुद्ध मन लेके प्रभु के पास आऊंगा, मैं मेरी जीवित परमेश्वर की आराधना करूंगा। चाहे मेरे बाजू में बैठे हुए लोग वो पिकनिक मनाए, माहौल वातावरण में खो जाए, परंतु मैं मेरी यहोवा की आराधना करूंगा, मैं गिराऊंगा। मेरे प्यारे परमेश्वर के संतान, पत्रोस को जो मौका मिला था उससे भी सामर्थी मौका आज प्रभु आपको दिया। हालेलुया। पत्रोस से भी सामर्थी मौका, पत्रोस से भी सामर्थी हालेलुया प्रभु का काम आपके जीवन में होगा। कौन सा? वो पश्चाताप कर रहे हैं। हालेलुया। ये भी एक पश्चाताप का ही भजन है। हालेलुया। आइए हम एक बार प्रभु के महिमा में प्रवेश करने से पहले एक बार हमारे समर्पण को एक बार हम क्रॉस चेक कर ले। प्रभु मेरा समर्पण, मेरा समर्पण। प्रभु मैं विश्वास करता हूं, तू विश्वास करता है, अच्छा बात। तो शैतान भी विश्वास करता है, परमेश्वर की आज्ञा पालन करता है क्या वो? समर्पण, एक शुद्ध मन। महिमा तैयार हो रहा है। एक बार पश्चाताप के दौरान, एक बार अब जहां बैठे हैं, मुझे मालूम है मेरे पाप, मेरे अधर्मों, मैंने यहोवा के विरोध कौन सा काम किया मुझे मालूम है। प्रभु एक बार प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु मैं जानने के लिए कोशिश कर रहा हूं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु समझाएगा उसके आत्मा के द्वारा। प्रभु जो बंद हुआ चीज वो प्रभु खोल के देगा। मैं संसार के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वर्गीय धन के बारे में बात कर रहा हूं। यहां कुछ संसार का बात है ही नहीं। हालेलुया।
परमेश्वर वो महान काम आपके जीवन में करेगा। वो करना शुरू भी कर दिया। हे यहोवा, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। प्रभु, उस मन से मैं तुझे जानूंगा, वापस तेरे संग चलना मैं शुरू करूंगा, और तेरे पीछे पीछे होते होते जब मैं सुधर जाऊंगा, मेरे आने वाला पीढ़ी भी सुधर जाएगा। हालेलुया। मेरा कलीसिया का उन्नति तो तूने तो दे ही दिया। प्रभु, इस वचन से सभी को अनुग्रह करे। थैंक यू चर्च। जीसस ब्लेस यू ऑल। प्रभु को धन्यवाद दीजिए अच्छा वचन के लिए। हालेलुया। वापस परमेश्वर का दास जेफिन पास्टर से सुनने के लिए जा रहे हो। परमेश्वर का दास अपना इस वर्ष का काबोद 2023 द ग्लोरी ऑफ गॉड जलाल इस जो स्पेशल कैंप का गेस्ट स्पीकर है। सो जेफिन पास्टर इज नॉट एन आउटसाइडर, ही इज द पार्ट ऑफ हार्वेस्ट फैमिली। वेलकम यू पास्टर। तालियां बजाकर परमेश्वर का दास को स्वागत कर दीजिए। आगे के समय पास्टर परमेश्वर के वचन से बात करेगा। प्रेज गॉड। आज सुबह मैं यहाँ पर आया, मुझे बहुत खुशी का बात है। I'm very happy to be here this morning. फिन्नी पास्टर ने मुझे बहुत पहले बोला था कि यहाँ पर मीटिंग के लिए आना है। Finney Pastor had told me, informed me long ago that you have to come here in this camp. फिन्नी पास्टर को मैं नो नहीं बोलता कभी। I never say no to Finney Pastor. उसका एक बड़ा कारण ये है A big reason for that is कि मैं सीखने के लिए आता हूँ यहाँ पे। I come here to learn. जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था, I came for the first time here. मैं पास्टर से बहुत कुछ सीखा, I learned a lot from Pastor. और इसीलिए मैं हमेशा यहाँ पे आता हूँ And that is why I always come here, कि उनसे मैं और कुछ मैं पाने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। so that I can receive something from him. और साथ साथ में मुझे यहाँ संगति बहुत बहुत पसंद है। I love the fellowship here, मुझे यहाँ की संगति बहुत पसंद है, और that's why I come here always. इसलिए मैं यहाँ पर हर समय आता हूँ। And so whenever I come to Bombay, I come to your church. जब भी मैं बॉम्बे आता हूँ, मैं आपकी कलीसिया में आता हूँ। मुझे बहुत लोग बुलाते हैं चर्च में। I बॉम्बे में when I come, people call me for in the churches. मैं जब बम्बई आता हूँ, मेरे को अलग अलग कलीसिया बुलाती है। लेकिन संडे को अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं इधर ही आता हूँ। If I'm here on a Sunday, I definitely come to the Harvest Inland Mission Church. Because I feel the liberty in worship. Praise क्योंकि God. मैं यहाँ की आराधना में वो आजादी को महसूस करता हूँ। जो मैं चाहता हूँ वो यहाँ पे है। What I want, it is present here. May God bless all of you. आप सबको परमेश्वर आशीष करे। हमारे पास कम टाइम है। We have a very little time. उस कम टाइम में कुछ बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। I want to tell some things from that limited time. बाइबल सब लोग खोलेंगे We'll all open our Bibles और कुछ चीजें हम लोग ध्यान से देखेंगे। and we will meditate upon some things. यूहन्ना the Gospel of John, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:17। 1 verse 17. The Gospel of John 1 verse 17. यूहन्ना का पहला अध्याय का 17 वचन। वहाँ लिखा हुआ है, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. क्योंकि नियम मूसा के द्वारा आया था, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। आमीन। नियम या व्यवस्था प्रभु यीशु मूसा के द्वारा आया था, लेकिन सच्चाई और अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा दी गई। Hallelujah. Law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus. आमीन। ये जब यूहन्ना लिख रहा है, When John wrote this, ये प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 60 साल के बाद लिख रहे हैं। he wrote this 60 years after Jesus departed to heaven. आमीन। ये 60 साल के बाद उस कलीसिया के अंदर, After 60 years in this church, उस 60 साल के बाद उस कलीसिया के अंदर में, after 60 years in the church, वो कलीसिया के अंदर अभी भी पुराना व्यवस्था के बारे में बहुत बात चल रहा था। the former law was still at work in the church. तो यूहन्ना यहाँ पर शुरू करता है John 1:1 से, So John starts with the first verse. कि आदि में वचन था। He writes that in the beginning was the word. बाकी मत्ती, मरकुस, लूकुस में अलग बिगिनिंग दिया हुआ है। In the Gospel of Matthew, Mark and Luke, there is a different beginning. लेकिन यहाँ पर यूहन्ना परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में इंट्रोड्यूस करता है प्रभु यीशु मसीह But को। here John introduces about Jesus in the first verse. वो बोलता है कि आदि में वचन था, He says in the beginning was the word. एंड वो बाकी आप लोगों को मालूम है। You know the remaining verse. लेकिन इस जल्दी से मैं कुछ बात आपसे बोलना चाहता I हूँ। quickly want to tell some things to you. इस यूहन्ना के इस गॉस्पेल के अंदर एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। In this Gospel of John, one person is very important. उसका नाम है निकोदिमस। And that person's name is Nicodemus. निकोदिमस के बारे में जॉन बोलता है 3 बार। John mentions 3 things about Nicodemus. 3 बार बोलता He है। mentions 3 times about Nicodemus. निकोदिमस के बारे में he mentions at 3 places.
3 जगहों में निकोदेमस के बारे में वो बताता है। One in the beginning, एक शुरुआत में, one in the middle, one in the end. एक मध्य में और एक अंत में। We will look at the beginning portion. हम शुरुआत में देखेंगे। निकोदेमस के बारे में जब हम सीखते हैं, When we learn about Nicodemus, he was one of the chief Pharisee ruler. वो वहाँ का सबसे मुख्य फरीसी एक नेता था फरीसियों में he was the chief. और फरीसियों में प्रमुख था। वो फरीसियों में 71 top people में he was one of the persons there. फरीसियों के 71 लोगों में से सबसे प्रमुख व्यक्ति था। और रात में प्रभु यीशु मसीह के पास में वो आता है। In the night he came to Christ. हम ये पढ़ते हैं यूहन्ना 3 में पढ़ते हैं 3 में। When we read from John chapter 3, वहां लिखा हुआ है there It is was a written. man of the Pharisees named Nicodemus. it is written, वहाँ पर फरीसियों में से एक व्यक्ति था जिसका नाम निकोदेमस है। वो यहूदियों का he was a ruler of the Jews. यहूदियों का वो राजनेता था फिर लिखा हुआ the same came to Christ by night. और वो रात को यीशु मसीह के पास आया। And प्रभु यीशु से उसने बोला हे रबी। उन्होंने यीशु मसीह से कहा ओ रबी। हाँ he told हे रबाई। उन्होंने कहा हे रबी। उसने बोला He told, we know that thou art a teacher come from God. हम जानते हैं कि तू परमेश्वर से आया हुआ एक शिक्षक है। उसने क्या बोला? Thou art a teacher. तुम परमेश्वर से आए एक शिक्षक हो। You are a teacher who has come from God. तुम परमेश्वर से आए एक टीचर हो। You are a teacher who has come from God. फिर वहां लिखा हुआ है It is written there. For no man can do these miracles except by God. कोई भी व्यक्ति ऐसी चमत्कार परमेश्वर के अलावा नहीं कर सकता। हाँ, except God be with him, कोई नहीं कर पाएगा। If God is not with him, nobody else can do this अगर miracles. प्रभु आपके साथ में नहीं है, If God is not with you, आप ये नहीं कर पाएंगे। you won't be able to do that. यहाँ पे दो बात है। There are 2 things here. वो पहले बोल रहा है He says first, कि आप एक टीचर हैं जो परमेश्वर से आए हैं। he mentions that you are a teacher who has come from God. फिर ये miracles nobody can do, अगर प्रभु साथ में तभी कर पाएंगे। No one else can perform these miracles except he is from God. मेरे एक टीचर हैं बैंगलोर में। I have one teacher in Bangalore. उन्होंने मुझे ये सिखाया। He taught me this. तो I want to refer him because ये क्या बोलते हैं plagiarism नहीं करना। I don't want to cheat and tell you. तो मैं आपको नकल करके नहीं कहना चाहता, पर उन्होंने जो मुझे सिखाया मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बात उन्होंने बहुत अच्छा मुझसे बताया। One very good thing he told about this. He asked, is he a good man? उन्होंने पूछा क्या निकोदेमस एक अच्छा व्यक्ति था? आप बताइए, is he a good man? क्या निकोदेमस एक अच्छा व्यक्ति है? इसने अच्छा बात बोला यहाँ पे। He told a good thing here. इसने ये बोला कि you are one person from God, who is a teacher from God. Nicodemus says तुम परमेश्वर से आए हुए एक शिक्षक हो। फिर बोलते हैं कि nobody can do except God is with him. और ऐसे चमत्कार कोई नहीं कर सकता उसके अलावा कि वो परमेश्वर से हो। कुछ अच्छी बातें बोल रहा है वो। He's saying some good things. तो ये आत्मिक है कि नहीं आत्मिक है, आप बताइए। Is he a spiritual man or not? आप बताइए क्या वो एक धार्मिक व्यक्ति है या क्या वो पवित्र व्यक्ति है? अगर ये बात मैं बोलूं तो आप क्या बोलेंगे? If I say this thing, what would you say to आप me? बोलेंगे हाँ, आप तो आप आत्मिक है, आप धार्मिक है। You would say yes, you are spiritual, yes, you are true. लेकिन यहाँ पर उसने एक बात मिस किया। But he missed one thing here. यहाँ लिखा हुआ है कि you came from God, you are a teacher. उन्होंने कहा तुम परमेश्वर से आए हुए एक शिक्षक हो। सेकंड बात बोला कि God is with you. उन्होंने कहा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। मन में पहले आपके मन में क्या आ रहा है? जॉन 1:1। अभी हमारे मन में आता है यूहन्ना का पहला। वापस आएंगे। We'll come back. In the beginning was the word. आदि में वचन था। पहले क्या था? वचन। And the word was with God. और वचन परमेश्वर के साथ था। Except God is with you. The word was with God, है ना? परमेश्वर के साथ ये वचन था। हाँ, तो प्रभु क्या बोल रहा है? Except God is with you, ये miracles आप नहीं कर पाओगे, ऐसे बोल रहा है। परमेश्वर अगर आपके पास नहीं है, साथ नहीं है, तो ये चमत्कार आप नहीं कर सकते। लेकिन but one thing he missed. लेकिन निकोदेमस ने एक चीज को चूक गया। He is not saying that you are God. उसने ये नहीं कहा यीशु से कि तुम परमेश्वर He हो। is not saying that you are God. उसने यीशु मसीह से ये नहीं कहा तुम परमेश्वर हो। The third thing is the word was God. क्योंकि यूहन्ना पहला कहता है कि वचन ही परमेश्वर था। Nicodemus 2 तक आके रुक गया। Nicodemus came to the first 2 steps and stopped. वो थर्ड चीज क्यों नहीं बोल रहा है? Why did he not say the third thing? क्योंकि उसको ये मानना मुश्किल है कि ये परमेश्वर है। Because it is difficult for him to understand that he is God. उसको मानने का मन नहीं है कि ये परमेश्वर है। He does not have the willingness to understand that he is God. See, miracles अच्छा लग रहा है देख के। Miracles are good to see. जो आप सिखा रहे हैं वो भी अच्छा है। What you teach is also good. I feel कि आप प्रभु से आए हैं। मैं ऐसा फील करता हूँ। I feel that you come from God. I feel के साथ परमेश्वर है आपके। मुझे ऐसा लगता है that God is with you. लेकिन मुझे ये नहीं मानना कि आप परमेश्वर है। But I don't want to comprehend and understand that you are God. क्योंकि इसमें क्या कार्य कर रहा है? व्यवस्था।
Because what is working in him is the law. उसमें व्यवस्था कार्य कर रहा है, Law is working in him. उसमें नियम कार्य कर रहा है। Law is working in him. प्रभु यीशु का लिबर्टी उसमें कार्य नहीं कर रहा, The liberty of Jesus is not operating in उसमें him, बुद्धि कार्य कर रहा है, but बुद्धि। his own mind, his own understanding. लेकिन फिर हम पढ़ते हैं कि कैसे यूहन्ना ने और आगे उस पर लिखा, तो How John has written ahead, we see there. ही इज सेइंग कि उसके बाद वर्ड के बाद समथिंग एल्स केम। After the word came something else. हमें वहां लिखा हुआ है It is written, कि एक मनुष्य था there was a man sent from God. जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था. आप हिंदी में बोला, ऐसे ही नहीं, okay? There was a man sent from God एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था, whose name was John. जिसका नाम है यूहन्ना. It's in one verse 6. There was a man, his name was John. पहला यूहन्ना का पहला अध्याय का 6वां वचन कहता है कि एक व्यक्ति था जो परमेश्वर से भेजा गया, उसका नाम यूहन्ना था. We all know he was preparing the way for the Lord. हम सब जानते हैं वो परमेश्वर के मार्ग को आने के लिए तैयार कर रहा था. He was preaching the gospel, or you should say he was preaching about God's kingdom is going to come. वो परमेश्वर के आने वाले राज्य के बारे में प्रचार कर रहा था. Bible says वचन कहता है he was not the light. वो 8th verse. उसका वचन कहता है कि वो ज्योति नहीं था, But was sent to bear witness of the light. लेकिन वो उस ज्योति का गवाह बनने के लिए भेजा गया था. John was not the light, यूहन्ना ज्योति नहीं था, but he was sent to bear the witness of the light going to come. लेकिन उस ज्योति का गवाही जो आने वाला है उसका गवाही बनने के लिए भेजा गया था. That Christ is the true light, वो यीशु ही सच्चा ज्योति है, which lighteth every man in the world. जो इस पृथ्वी के हर एक व्यक्ति के अंदर वो ज्योति को Now, चमकाता है. John prepares the way for Lord Jesus Christ. तो इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो परमेश्वर के आने वाले राज्य के लिए वो राह को बताता है. He prepares in many ways. अलग अलग मार्गों में वो बनाता है. One was he was preaching about him going to come. एक है जो वो उसके आने का सुसमाचार बताता है. और साथ साथ में And in addition to that, उसने अपने चेलों को भी तैयार किया प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताकर. he also prepared his disciples about telling them about Jesus. उसने बोला कि हे चेलो, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं. He told his disciples that Jesus is going to come. वो दुनिया का मेमना है. He is the Lamb of the world. आमीन. वो आने वाले हैं करके बताया उसको. And he told him that he's going to come. आमीन. जब आगे पढ़ते हैं, When we go ahead and read ahead, जल्दी पढ़ेंगे. we'll read quickly. वहां पर हम देखते हैं We see there उसका 1 का 35 से पढ़ेंगे, 35 से. John 1:35. जो दिखाइए स्क्रीन पे, 135 से पढ़िए. The next day John was there again with 2 of his disciples. यूहन्ना जो था चेलों के साथ वहां पे खड़ा है सामने, The disciples are standing ahead of John, और वो बोल रहा है, and John is saying to them, और लिखा हुआ है जब यीशु मसीह चलकर पास में आए तो it is written when he saw Jesus passing by, उसने बोला, he said, ये देखो, look, ये देखो मेमना. look the lamb, और लिखा हुआ है ये Look, देखो the Lamb of God. आमीन. ही प्रभु का मेमना खड़ा है. look the lamb of God is standing here. जैसे उसने ये बोला, As soon as he said this, साथ में खड़े 2 लोग, the disciples, the 2 disciples who were there with him, एक था एंड्रू one was Andrew और एक चेला और था. and there was another disciple. वो सुन लिया इसने क्या बोला, They overheard what he said, क्योंकि ये चेले भी वेट कर रहे थे इस ग्लोरी के लिए. because these disciples were also waiting for this glory. ये लोग सुन रहे हैं कि कोई आने वाला है, They were listening that somebody is going to come. कोई प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, Some Christ is going to come. जो प्रभु का परमेश्वर का मेमना है, Who is the Lamb of God? जो प्रभु का ग्लोरी है, Who is the glory of God? प्रभु का एक्सप्रेस इमेज है, Who is the image of God? वो आने वाले हैं वो सुना करके. He is going to come, and they overheard it. लेकिन जब सामने जैसे ही आया, But as soon as Jesus passed by, जॉन ने बोला, behold the lamb of God. यूहन्ना ने कहा, ये देखो परमेश्वर का मेमना. Behold the lamb of God. ये देखो परमेश्वर का और मेमना. जैसे एंड्रू ने देखा अरे लैम्ब आ गया है, As soon as Andrew saw that the lamb has arrived, इसको छोड़ दिया. they left John. इसको छोड़ करके They left John, he went behind him. and Andrew went behind He Jesus. went behind him. Andrew went behind Jesus. क्यों गया? Why? Because the bigger has come there. क्योंकि उससे भी महान कोई आया है. जो और बड़ा है वो सामने आ गया. There's something bigger than John has क्योंकि come. I was hearing about him. मैं उसके बारे में सुन रहा था. I was hearing about his glory. मैं उसकी महिमा के बारे में I सुन was रहा था. hearing about his power. मैं उसकी सामर्थ्य के बारे में सुन रहा था. किसने बताया मुझे? Who told me this? I mean the way maker. Who was that? John. यूहन्ना जिसने मार्ग को तैयार किया वो. उसने बोला कि आने वाला है. And he told there is somebody who's going to come. और ये सुन रहे हैं कि आने वाला है. And these disciples were listening, somebody is going to come. And the day he came forward, जिस दिन वो आगे आया, John said, behold the lamb. यूहन्ना ने कहा देखो मेमना आया है. That moment,
उसी क्षण, that moment they could see the glory of God. उसी क्षण परमेश्वर की महिमा को उन्होंने देखा। They didn't turn back on their old master. उन्होंने अपने पीछे पुराने मास्टर को नहीं देखा, They didn't look back at the old power. अपने पुराने सामर्थ्य को नहीं देखा, They looked forward उन्होंने सामने की ओर and देखा went towards the master. और उस स्वामी के पास गए, Went towards the glory of God. उस महिमा जो परमेश्वर की ओर से है, उसके Because पास गए। behold, he's the Lamb of क्योंकि God देखो वो परमेश्वर का मेमना है who will die for my sin. जिसने मेरे पापों के लिए मरा। My previous master will not die. मेरा पुराना स्वामी मेरे पापों के लिए नहीं मरेगा। अब तुम्हारा पुराना स्वामी नहीं मरेगा, Your old master will not die for your sin. तुम्हारे पापा जी नहीं मरेंगे, Your father won't die for your तुम्हारी sin. मम्मी नहीं मरेगी, Your mother won't die for your दोस्त sin. नहीं मरेंगे, Your friends won't die for your मरने sin. वाला एक ही है. Only one is going to die. Behold the Lamb of और God. वो देखो परमेश्वर का परमेश्वर का मेमना, मेमना. वो परमेश्वर का मेमना, He died for the world. वो संसार के लिए मरा। He is the glory of वो God. परमेश्वर का महिमा है। वो महिमा हमारे ऊपर आना है. And that glory will come upon us. Amen. The moment you go behind him, जिस क्षण आप यीशु के पीछे जाते हैं, that glory covers you. वो महिमा आपको घेर लेता The है, glory covers वो you. महिमा घेर लेता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Kama shamdara hashkada. मसीहाला बासाखोरीबा, Rikama shamdara hashkada. रश्मारा थोरिया साकाराबा। वहां पर स्टोरी खत्म नहीं हुआ. वहां पर कहानी खत्म नहीं होती है, Amen. The story continues. वहां पर कहानी आगे बढ़ती है। Verse 37 से पढ़ेंगे. And they heard him speak and they followed Jesus. Verse 37 says, when the two disciples heard him say this, they followed Jesus. उन्होंने यीशु का पीछा किया। पता है क्या किया एंड्रू ने? What did Andrew do? एंड्रू एक जबरदस्त इंसान है. Andrew is a very good person. Verse 40 पढ़ेंगे. 40वां वचन हम पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है, It is written, उन दोनों में से जो यूहन्ना का बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था. Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. अंद्रियास पहले क्या किया? What did Andrew do first? वो अपने सीधा घर गया. The first thing he did is he went to his home. अपने घर गया. He went to his home. और उसने क्या किया? And what did he do? उसने बोला, हे भाई मैं पतरस. Hey, oh brother Simon. हे सीफस. Oh Simon. पता है आज क्या हुआ? What happened today? You know अरे वो मसीहा जो था ना, that Christ, I saw him. मैंने वो मसीहा को देखा। देखो आगे पढ़ो. नेक्स्ट उसने verse 41 क्या लिखा हुआ है? 41 वचन में He first लिखा हुआ है, उसने पहले अपने सगे भाई को मिला. देखो लिखा हुआ है, सगे भाई के पास गया. For he first find his own brother और बोल रहा है कि क्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया. and he said to him, we have found the Messiah. आगे पढ़िए. वह उसे यीशु के पास लाया. And he brought him to Jesus. यीशु ने उसको देखकर कहा, And Jesus told him, तू कौन है? तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है. you are Simon the son of Jonah. तू केफा है. You will be called Cephas. मुझे पूछना है अंद्रियास से, I want to ask Andrew, तू क्यों पतरस को जाके बोला कि यीशु को देख लिया? why did you go first and say to Peter that I have seen Jesus? मुझे याद है पिछले बार जब मैं चर्च में आया था आपके, I remember the last time I came to the church, मैंने बताया था what is the meaning of Simon Bar Jonah. I told you what was the meaning of Simon Bar-Jonah का मतलब क्या है. योना का बेटा साइमन मतलब क्या मैं बताया था आपको. I told you what was the meaning of Simon Bar-Jonah. I'll come to that अभी एक बार और. अब मैं वहां पर वापस आऊंगा. लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, It is written here, यूहन्ना का पुत्र शिमोन, तू शिमोन है. Simon the son of Jonah. यहाँ लिखा हुआ है It is written here, कि अंद्रियास सबसे पहले अपने घर गया. it is written Andrew first went to his home. यीशु को देखते ही अपने घर गया. After he saw Jesus, he went to his home first. हम पढ़ते हैं ना प्रेरितों 1:8 में, when the power comes you be a witness in your own house first. प्रेरितों Acts first 8 verse says, when you receive the Holy Spirit, you become the witness in your own house. In Jerusalem. यरूशलेम में. First in Jerusalem, अपने घर पहले में. यरूशलेम में अपने घर पे आप गवाह बनते है हैं. ना? जैसे ही बोला, जैसे ही सुना कि यीशु को देख लिया, सबसे पहले अपने घर गया. As soon as he saw Jesus, he first went to his home. बोला, हे शिमोन, He told, hey Simon, इतने साल से so many years पापा बोल रहे थे ना कि यीशु मसीह के बारे में. So many years our father was saying about हम Jesus. पढ़ रहे थे ना यीशु मसीह के बारे We में. read about Jesus. मैंने देख लिया यार. I saw Jesus. मैंने देख लिया. I saw him अरे हर रात में every night. पापा बाइबल पढ़ते हैं. When father used to open his Bible, वो बोलते थे कि यीशु मसीह आने वाला है. he would say Jesus is going to come. हर मॉर्निंग उठाते थे, उठो Every morning he used to wake us up. लेट्स वेक अप फॉर प्रेयर. प्रार्थना वो करेंगे. कहते थे प्रार्थना के लिए उठो.
जैसे उठते हैं वो बोलते हैं Or just as soon as they used to wake up, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। the father used to say Jesus is going to come. ये दोनों भाई लोग These two brothers सुन के पढ़ते रहते हैं always used to read कि यीशु आने वाला that है, Jesus is going to come. यीशु आने वाला Jesus है, is going to come. यीशु आने वाले हैं। Jesus is going to come. पापा ने क्या किया? पापा ने बोला What did the father say? देखो एक यूहन्ना भी आएगा, See, there will also be a John who is going to come. तू एक काम कर, You do one thing. तू उसके पीछे हो ले। You follow John. क्या होगा पता है क्या होगा? What did happen? You know? He will be a way maker. वो मार्ग बनाने वाला होगा. He will be a way maker. मार्ग बनाने वाला होगा. और निश्चित तौर पे पहले वो देखेगा। And definitely you will see it first. I mean, वो यूहन्ना पहले देखेगा। And definitely John will see it first. If you go and follow John, अगर तुम यूहन्ना का पीछा करोगे तो maybe you can also see him. शायद तुम भी यीशु को देख सकोगे. अंद्रियास खुश होकर Andrew became happy भाग गया जॉन के पीछे। and he ran after John. फिर जॉन बोलना शुरू किया, यूहन्ना ने कहा, जो तू पढ़ता था घर के अंदर यीशु मसीह के बारे में, the thing which you read about Jesus in your home, वो आने वाला है। that Jesus is going to come. वो यीशु आने वाला है। That Jesus is going to come. वो यीशु देखो अभी आने वाला है। That Jesus is going to come. और बोल बोल कर And after saying this, अंद्रियास देख रहा है, Andrews is waiting and seeing. आज आएगा, He'll come today. कल आएगा, He'll come tomorrow. कल आएगा, He'll come tomorrow. और जल्दी एक दिन क्या हुआ? And suddenly one day, जॉन ने बोला, John said, behold, देखो, वो इंसान है, there is a man. वो पुरुष है There is a man जिसके बारे में तुम सुने थे, about whom you read and heard. तुम पढ़े थे, About whom you read. और मैं साक्षी हूँ। And I am a witness. बोलता है कि behold देखो, the lamb of God, वो परमेश्वर का मेमना. the lamb of God, वो परमेश्वर का मेमना. उसके हाथ में जो था, Whatever was there in his hand. he ran behind Christ, और परमेश्वर यीशु के पीछे भागने लगा. यीशु के पीछे आया यीशु के he ran after Christ और देख के चौंक गया। and he was shocked after Oh, he seeing. has glory, क्योंकि उसके पास महिमा है. और जैसे उसको मिला, And as soon as he received it, वो ग्लोरी को लेकर अपने घर भागा। वो महिमा को लेकर अपने घर पे भागा. बोला, हे सीफस, He said, hey हे Simon, मेरे भाई, oh brother, चलो, come. यीशु आ गया, Jesus यीशु आ गया। Jesus has arrived. यीशु को देखते ही After seeing Jesus, यीशु ने बोला, हे पतरस, Jesus told to Simon, आज से you come behind me। from today you follow me. अब वहां पे क्या हुआ? What happened there? यहाँ हम पढ़ते हैं यूहन्ना पढ़ते हैं मत्ती 16 के बारे में, मैथ्यू 16, मत्ती रचित सुसमाचार का 16 अध्याय. ये आप लोग जानते हैं। You know this. यीशु ने बोला, साइमन बार जोना, साइमन son of Jonah, Jesus told Simon Bar Jonah, flesh and blood has not revealed to you, शरीर और मांस तुम्हें नहीं दर्शाया गया है. flesh and blood has not revealed who I am, मांस और लहू ने ये नहीं बता के दिया है कि मैं कौन हूँ, but my Father in heaven। लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता ने. मतलब मैंने आपको बताया था, I told you last time. मतलब ये है The meaning is, कि तुम्हारे पापा योना के कारण तुम मुझे जानते नहीं। you are not knowing me because of your father Jonah. ये बात सही है कि It is तुम्हारे true. घर में डेली प्रार्थना होता है। It is true that every day there is a family prayer in your house. ये बात सही है कि तुम सुनते हो मेरे बारे में हर दिन, Every day you hear about me, लेकिन तुम्हारा पापा के कारण तुम जाने नहीं, but you are not knowing me because of your father, लेकिन because of my papa in but heaven। because of my heavenly father. और आज क्योंकि ऐसा एक रेवलेशन मिल रहा है, But because today there is such a revelation, मेरा ग्लोरी को I send upon you, receive it। आज मैं तो अपने महिमा को तुम्हारे ऊपर भेजूंगा. जो महिमा मेरे ऊपर है, The glory which is upon me. साइमन, सिमोन, you will be called Peter। तुम आज से पतरस बुलाए जाओगे. पतरस, पतरस, here I hand over the keys to you। आज मैं तुम्हें कुंजी भेज रहा हूँ. चाबियां देता हूँ। आज मैं हालेलुया। तुम्हें वो कुंजी भेज रहा हूँ. जो तुम खोलोगे That which will open, वो वहां पे खुलेगा, the things which you open on जो- earth will be opened in heaven. जो तुम यहाँ बांधोगे Whatever you bind here, वो वहां पर खुलेगा, that will be बंधेगा। binded upon in the आमीन। heavens. क्योंकि मेरा ग्लोरी तुम्हारे ऊपर है। Because my glory is upon you. वो ग्लोरी क्या है? What is that glory? हेवनली कीज, वो स्वर्गीय चाबी है, हेवनली कीज, स्वर्गीय कुंजी है. प्रभु की सेवकाई के लिए हेवनली कीज। परमेश्वर की सेवकाई के लिए वो कुंजी है. ये कैसे मिलता है? How do you receive it? थ्रू रेवलेशन एंड बिलीफ, प्रकाशन से और विश्वास से मिलता है. रेवलेशन एंड फेथ। प्रकाशन और विश्वास से ये महिमा मिलता है. जल्दी से समय हो गया, एक बात और बोल के मैं बैठूंगा। I just want to say one thing and we'll finish up. यूहन्ना में लिखा हुआ है पहले अध्याय में, John 1, वहां लिखा हुआ है, it says, verse 43, the day following Jesus would go forth in Galilee and findeth Philip and said, follow me। 43 वचन में लिखा, यीशु मसीह वहां से गलीली से निकलकर फिलिप को देखकर कहता है, मुझे पीछा कर, मेरा पीछा फिलिप्पो से बोला, मेरे पीछे हो जाओ। कर. यीशु फिलिपोस से कहता है, फॉलो मी. फिलिप ने क्या किया? What did Philip do? फिलिप को एक व्यक्ति मिला, नथानिएल। Philip found one person, Nathaniel. वहां देखो लिखा हुआ है, verse 45 में क्या लिखा हुआ है? What is written in verse 45 वचन? जिसके बारे में हम पढ़ते आए हैं, The one about whom we read in the law. वो हमें मिल गया। We found him.
और इसने क्या किया? And what did he do? नथानिएल ने उससे कहा He told to Nathaniel. कि नासरत से कोई अच्छा बाहर आएगा? Nathaniel asked Philip, can anything good come out of Nazareth? फिलिप बोल रहा है आके देखो. Philip told you, come and see. You come in, तुम आके देखो. Come and see. जब वो सामने आया, When he went forward, आगे क्या पढ़ते हैं? what do you see next? यीशु आगे 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 फर्स्ट 47 आगे क्या लिखा हुआ है? यीशु उसको आते देख बोला, Jesus saw Nathaniel. Behold an Israelite. यीशु ने नथानियल को देखकर कहा, देखो एक इस्राएली, एक सच्चा इस्राएली, एक सच्चा, a true Israelite, सचमुच इस्राएली, a true Israelite, इसमें कपट नहीं है. in whom there is no guile. आगे क्या पढ़ते हैं? आगे पढ़िए, यहाँ पे हम वापस आएंगे. आगे पढ़े, यहाँ लिखा हुआ है, नथानिएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, I knew you. Hallelujah. Nathaniel asked Jesus, how do you know me? And Jesus said, when you were sitting under that fig tree, I saw you. इसका मतलब क्या है? What does this mean? इसका अर्थ क्या है? What does this mean? इसका मतलब This means अंजीर का पेड़ दिखाता है व्यवस्था को. the fig tree demonstrates the law. When you were under the law, I knew you. Hallelujah. जब तुम व्यवस्था के नीचे थे तब भी मैंने तुम्हें देख लिया जब था. तू बाइबल कॉलेज में था, I knew you. जब तुम बाइबल स्कूल में थे तभी मैंने देखा. Fig tree shows law. अंजीर का पेड़ व्यवस्था को दर्शाता है. तू लॉ में था, व्यवस्था में you were under the law. लेकिन जब तू लॉ में था, I saw you, I knew you. लेकिन जब तुम व्यवस्था में थे मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें जाना. यीशु ने क्या कहा? What did Jesus say? तू सच्चा इस्राएली है. He is a true Israelite. ऐसा क्यों कहा? Why did he say that? ये आगे पढ़िए. Next verse we can see. पढ़िए. वहाँ लिखा हुआ, नथानिएल ने उसको उत्तर दिया है कि हे रब्बी. Nathaniel answered, hey Rabbi. फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने बोला, In the first attempt he said, you are son of God. तुम परमेश्वर के पुत्र हो. व्यवस्था के अधीन होकर Under the law, इतने साल रहा और वो बोल रहा है एक ही बार में, तू प्रभु का पुत्र है. so many years he was under the law, but in the first attempt he says, you are the son of God. तो इस्राएल का महाराजा है. You are the king of Israel. आगे पढ़िए. Next क्या लिखा verse. हुआ है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, Jesus answered and said, मैंने तुझसे कहा, because I said unto thee, एक सिंपल चीज कहा, I told you a simple thing, कि जब तू वहां पे था, I saw you. that I saw you when you were under the fig tree, और तूने विश्वास कर लिया. and you believed me. तूने विश्वास कर लिया. You believed me. यीशु ने कहा, अब एक बात I want to tell you, तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा. You will see greater things than these. एक बारी में In the first attempt, तूने विश्वास कर लिया. you believed. पर यीशु बोल रहा है, Jesus said, तू सच्चा इस्राएली है. you are a true Israelite. पहला इस्राएल कौन है? Who is the first Israel? पहला इस्राएली कौन था? Who is the first Israelite? कौन है? Who is the first Israelite? कौन? जेकब. याकूब. जेकब फर्स्ट इस्राएल था. याकूब सबसे पहला इजरायली था. उसने झूठ बोला. He lied. उसने झूठ बोला. He lied. पर वो बोल रहा है, you are the true Israelite. तू असली इस्राएली है. And Jesus says, you are the true Israelite. याकूब ने झूठ बोला, Jacob lied, लेकिन उसने दर्शन देखा. क्या देखा उसने? but he saw a vision. क्या देखा उसने? What did he see? सीढ़ी पे On the stairs, दूत उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं. angels are ascending and descending. वो कौन था? Who was that? वो झूठा इस्राएली, मतलब कि उसमें झूठ था. He was a deceitful लेकिन Israelite. यीशु यहाँ बोल रहा है, But Jesus says, you are a true Israelite. तुम एक सच्चे इजरायली हो. और साथ में एक और बात, There is one more thing. you will see greater things. तुम इससे महान चीजों को देखोगे. अब यीशु ने और एक बात बोला. वो क्या Jesus बोला? added one more thing. आगे पढ़िए. वहाँ लिखा हुआ है, He said, मैं तुमसे कहता हूँ, I'll tell you, you will see the heavens open. तुम स्वर्ग को खुला देखोगे. देखो, और परमेश्वर के स्वर्गदूत को ऊपर जाते और आते मनुष्य के पुत्र के ऊपर देखोगे. And you will see the angels of God ascending and descending upon the Son of God. कहाँ देखोगे? मनुष्य पुत्र के ऊपर. Where? देखो, you- जो चीज he couldn't see, Jacob, जो याकूब नहीं देख पाया, he is going to see that. वो नथानियल देखेगा. क्योंकि Why? in one simple sentence he believed. क्योंकि एक सरल भाषा, एक सरल बयान में वो समझ गया. I want to tell you something. मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ. If you believe today, आज अगर आप विश्वास करते हैं, you will see the glory of God. आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे. You will see the heavenly realm opening. आप स्वर्गीय मंडली को खुलते हुए You will see देखोगे. God's angels coming up and down आप upon you. परमेश्वर के दूतों को आपके ऊपर उतरते जाते हुए देखोगे. If you believe, अगर आप विश्वास करते if you believe, अगर आप विश्वास करते if you हैं, believe in अगर आप God, परमेश्वर पर विश्वास करते you हैं, will तो see God's glory आप upon you. परमेश्वर की महिमा को देखोगे. God's power upon you. परमेश्वर के सामर्थ्य को Can you उतरते हुए all stand देखोगे. up, please? और मैं Can you all stand up, आप please? सभी लोग खड़े हो जाए. मैं प्रार्थना करना है आपके लिए. I want to pray for you. In the
In the starting of the age, before time, there was word. समय की शुरुआत में एक वचन था, ये word आपके ऊपर आ जाना है. वो वचन आज आपके ऊपर आ रहा है, It will change your life. आपके जीवन को बदलेगा, It will bring glory upon you. आपके ऊपर महिमा लेकर आएगा, Your eyes will open. आपकी आंखें खुल जाएंगी, You will be a different man altogether. आप एक अलग व्यक्ति बन जाओगे. जो चाहते हैं अपना हाथ दिखाइए प्रभु को. Whoever wants this can raise their hands. Amen. Bigger things. बड़े बड़े काम, Harvest bigger things. हार्वेस्ट बड़े बड़े काम. हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के लिए. Lord, we pray for this church. एक बेदारी का अनुभव आज शुरू होना है. Lord, a revival must happen today. जहां पर ग्लोरी उतरा, Where the glory came, वहां पर रिवाइवल हुआ है. revival happened. मैं प्रे करता हूं सबके लिए. I want to pray. सबके लिए. I want to pray for everybody. सबके लिए. I want to pray for everybody. आपका महिमा, Your glory, आपका महिमा, your glory, आपका तेज, your light सबके ऊपर उतरने के लिए हम प्रार्थना करते may be हैं. imparted upon everybody. यीशु के नाम से. In the name of Jesus. प्रभु आज से लेकर Lord, from this day onwards, इस चर्च का इतिहास को आप चेंज कर दीजिए. you change the history of this church. आप इस कलीसिया के विजन को आप आगे बढ़ाइए. And you bring up the vision of this church more and ये more आपसे हम forward. प्रार्थना करते हैं. Pray, Lord. All glory to you. सारा महिमा तुझे देते यीशु के हैं. नाम से आमीन. In the name of Jesus, we pray, amen. प्रभु को धन्यवाद दीजिए. Hallelujah. परमेश्वर का दास का जरिए हालेलुया प्रभु का आत्मा हमसे बात की है. हालेलुया. ये गाना गा के हम आराधना करने के लिए जा रहे हैं. हालेलुया. उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया. उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया. यरीहो के किनारे आदम हुआ पड़ा, यरीहो के किनारे आदम हुआ पड़ा. उसने दाखरस और तेल उंडेला, इसलिए यीशु 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 मैंने उसको पा लिया. यीशु 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 मैंने उसको पा लिया. यीशु 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 मैंने उसको पा लिया. मैंने यीशु को पा लिया. ओ यीशु 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 मैंने उससे पा लिया. यीशु 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 मैंने उससे पा लिया. यीशु 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 मैंने उससे पा लिया. मैंने यीशु को पा ली. उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया. उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया. जब मैं आदम हुआ पड़ा, ये भी होके किनारे आदम हुआ पड़ा. उसने दाखरस और तेल, इसलिए मैं पुकारूंगा यीशु 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 मैंने उससे पा लिया. यीशु 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 मैंने उससे पा लिया. यीशु 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 मैंने उससे पा लिया. मैंने यीशु को पा लिया. उसकी महिमा को यीशु 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 मैंने उससे पा लिया. यीशु 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 मैंने उससे पा लिया. यीशु 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 मैंने उससे पा लिया. मैंने यीशु को पा लिया. मैंने यीशु को पा लिया. मैंने यीशु